Dear children, today we will see the usage of key. Usage of key. Key will be used to denote the feminine gender. What is that? Feminine gender, both singular and plural. Okay, ka we are using to denote masculine gender, singular. K we are using to denote masculine gender, plural. Key will be used to show the feminine gender, singular as well as plural. Okay, children, be ready. We will see some new examples and learn more. Okay, see now what is the first sentence? Village women. What will you say? Gav ki औरतें. गाँव की औरतें. गाँव की औरतें. गाँव की औरतें मीन्स विलेज वुमेन. विलेज वुमेन. गाँव की औरतें. औरतें फेमिनिन जेंडर, सो वी आर यूजिंग की. ओके, गाँव की औरतें. द मीनिंग फॉर औरतें? विमेन. औरतें फेमिनिन जेंडर, सो गाँव की औरतें we have written. ओके, गाँव की औरतें पानी भरती हैं. गाँव की औरतें पानी भरती हैं. गाँव की औरतें क्या करती हैं? क्या करती हैं गाँव की औरतें? गाँव की औरतें पानी भरती हैं. दे फिल. विलेज वीमेन फिल वाटर. गाँव की औरतें क्या करती हैं? गाँव की औरतें पानी भरती हैं. भरना टू फिल. पानी भरना टू फिल वाटर. औरतें फेमिनिन जेंडर, सो वी आर राइटिंग गाँव की औरतें. नोट दैट पॉइंट. गाँव की औरतें. गाँव की औरतें क्या करती हैं? गाँव की औरतें पानी भरती हैं. गाँव की औरतें क्या करती हैं? गाँव की औरतें पानी भरती हैं. समझे बच्चे? नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. भारत की नदियाँ सुंदर हैं. भारत की नदियाँ. भारत की नदियाँ. की नदियाँ. बिकॉज द की we are using the for Nadia in feminine gender, plural. For both singular feminine gender and plural feminine gender, we are using ki. Okay, so Bharat की नदियाँ. What's the meaning? Indian rivers. कैसी हैं? भारत की नदियाँ कैसी हैं? How are Indian rivers? भारत की नदियाँ सुंदर हैं. Indian rivers are ब्यूटीफुल. ओके, यहाँ की नदियाँ. भारत की नदियाँ. की नदियाँ बिकॉज नदियाँ इन फेमिनिन जेंडर. ओके, बट पानी. पानी इज अ मैस्कुलिन जेंडर वर्ड. नदियाँ फेमिनिन जेंडर वर्ड. समझे बच्चे? इनको याद रखो. वी विल सी some more examples also. Listen carefully. What is there in the next sentence? भाई की कुर्सी नई है. भाई की कुर्सी नई है. कुर्सी माने चेयर. कुर्सी का अर्थ क्या? चेयर. भाई की कुर्सी. भाई की कुर्सी मीन्स ब्रदर्स चेयर. Brother's chair is a new one. Naya, new. Nayi also new only. Okay, so भाई की कुर्सी. भाई की कुर्सी कैसी है? भाई की कुर्सी नई है. नई, new. So we are using की to denote feminine gender. Feminine gender, singular or plural for both. We are using की. समझे बच्चे? लिसन केयरफुली. यहाँ देखो, यहाँ क्या है? गुलाब की
माला, गुलाब की माला. Mala is a feminine gender word. Mala, garland. Mala means garland. It is a feminine gender word. Mala in feminine gender. So we are using ki. Gulab ki mala. Gulab ki mala. Rose garland. Okay. Gulab ki mala. How is it? Gulab की माला सुंदर है. गुलाब की माला कैसी है? हाउ इज इट? इट इज ब्यूटिफुल. गुलाब की माला सुंदर है. रोज garland is beautiful. देखो, I have told you we have gender for each and everything in Hindi, whether it's a living thing or non-living thing. Mala is a non-living thing, isn't it? Garland, but it is in feminine gender. So by using ki only we can know mala is a feminine gender word. Sanjay, now see Ravi ki kitab. Ravi ki kitab. Ravi's book. ரவியினுடைய புத்தகம். Ravi's book. Ravi ki kitab. Kitab is a feminine gender word. Kitab is in feminine gender. So what we are using before that? Ki. We are using ki before kitab. Sanjay? Ravi ki kitab. ரவியினுடைய புத்தகம். So we are using ki to denote feminine gender. We use ki to denote feminine gender word. Okay. रवि की किताब कैसी है? रवि की किताब मोटी है. रवि की किताब मोटी है. Ravi's book is thick. Okay. So किताब is a feminine gender word. समझे? इस पिक्चर में क्या है? बकरे. बकरे की पूंछ. बकरे की पूंछ. पूंछ means tail. Okay. Before tail, what is given there? Ka, ke or ki? Ki is given. Why? Because पूंछ is a feminine gender word. So बकरे की पूंछ. बकरे की पूंछ. Goat's tail. Okay. बकरे की पूंछ कैसी है? बकरे की पूंछ नाटी है. बकरे की पूंछ कैसी है? नाटी है. Goat's tail is short. बकरे की पूंछ कैसी है? नाटी है. बकरे की पूंछ नाटी है. नाटी मीन्स शॉर्ट. नाटा, नाटी. ओके. बकरे की पूंछ कैसी होती है? वो नाटी है. सो की पूंछ. पूंछ इज अ फेमिनिन जेंडर वर्ड. सो वी आर यूजिंग की. बकरे की पूंछ नाटी है. गोट्स टेल इज शॉर्ट. छोटा मीन्स स्मॉल. ओके. छोटा, small. Nata, short. Here poonch is a feminine gender word. So instead of nata we are writing nati. Sanjay bache? So dear children, go through these videos. Try to learn more and try to talk in Hindi. Okay. चित्र को देखो. दिलीप की गाड़ी यहाँ है. दिलीप की गाड़ी. दिलीप की गाड़ी मीन्स दिलीप्स व्हीकल. दिलीप की गाड़ी कहाँ है? यहाँ है. We can say गाड़ी for all kind of vehicles. Okay. यहाँ car is denoted as गाड़ी. ओके बच्चे. सो गाड़ी इज अ कार. यहाँ देखो दिलीप की गाड़ी. गाड़ी इज ए फेमिनिन जेंडर वर्ड. गाड़ी इज इन
feminine gender. Rail gaadi, feminine gender. Okay, gaadi, feminine gender. So we are saying Dilip ki gaadi. Dilip ki gaadi. This ki denotes gaadi is in feminine gender. समझे बच्चे? रेलगाड़ी चेन्नई की रेलगाड़ी कब आती है? ओके, चेन्नई की रेलगाड़ी. Likewise, दिलीप की गाड़ी. ओके, सो गाड़ी इज अ फेमिनिन जेंडर वर्ड, याद रखो. समझे? नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी हैं. नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी हैं. हु इज नेहरूज डॉटर? नेहरूज डॉटर इज इंदिरा गांधी. आपको मालूम है ना, नेहरू की बेटी, चाचा नेहरू की बेटी कौन है? इंदिरा गांधी. नेहरूज डॉटर इज इंदिरा गांधी. समझे? नेहरू की बेटी, नेहरू की बेटी, நேருவினுடைய மகள். समझे? नेहरू की बेटी कौन है? नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी हैं. नेहरू की बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी हैं. नेहरू की बेटी की denotes the gender, feminine gender. In this picture, what you are seeing? श्री राम की पत्नी सीता है. श्री राम की पत्नी कौन है? श्री राम वाइफ. हु इज श्री राम वाइफ? श्री राम की पत्नी सीता. श्री राम की पत्नी, श्री राम की पत्नी, श्री राम वाइफ. ओके, राम की पत्नी. सो दिस की डिनोट्स पत्नी इज अ feminine gender word. Okay, patni is a feminine gender word. So we are writing ki. Sri Ram की पत्नी. श्री राम की पत्नी कौन है? श्री राम की पत्नी सीता. श्री राम की पत्नी सीता. And the next one is अमर की थैली बाहर रखो. बाहर रखो. अमर की थैली बाहर रखो. की थैली, अमर की थैली, अमरुடைய பை. अमर is the name of a boy. अमर की थैली, अमरुடைய பை. Where to keep? बाहर रखो. Keep it outside. Okay. थैली is a masculine, feminine gender word. थैली is a feminine gender word. थैला is masculine gender. Thaili is feminine gender. Know the difference. Keep Amar's bag outside. Keep, रखना means to keep. Keep Amar's bag outside. अमर की थैली कहाँ रखना? बाहर रखो. Keep the bag outside. अमर की थैली बाहर रखो. थैली feminine gender, थैला masculine gender. समझे बच्चे? या one bucket is inside the well. Bucket is feminine gender. समझे? लता की बाल्टी. लता की बाल्टी. लता is a girl, so we know she is in feminine gender. Balti means bucket. Do you know what gender is bucket? Because it's a non-living thing, we do not know. So if we use ki before that balti, bucket, easily we can say that is in feminine gender, isn't it? So balti is a feminine gender word. Balti, bucket, it is in what gender? Feminine gender. लता की बाल्टी कुएं में है. लता की बाल्टी कहाँ है? Where is Lata's bucket? लता की बाल्टी कुएं में है. Bucket in Hindi, balti, that is in feminine gender. कुएं में है. कुएं means well. Lata's bucket is in the well. Balti feminine gender. See the next picture. हाथी की सूंड. हाथी
की सूंड. सूंड मीन्स ट्रंक ऑफ द एलिफेंट. हाथी की सूंड कैसी होती है? हाथी की सूंड. हाउ इज इट? इज इट स्मॉल और बिग? लेंथी वन. हाथी की सूंड लंबी होती है. ओके, हाथी की सूंड. हाथी elephant, that is in masculine gender, but its trunk is in feminine gender. याद रखो बच्चे. Keep it in your mind, children. For each and everything, whether it is parts of the body or parts of the tree, or a living thing or non-living thing, for everything we have gender. Okay, so here soond is in feminine gender. Hathi ki soond. How is elephant's trunk? It is lengthy. हाथी की सूंड लंबी होती है. हाथी की सूंड कैसी होती है? हाथी की सूंड लंबी होती है. Elephant's trunk is lengthy. It's long. Okay. What is kept here? दुकान की चाय. दुकान की चाय मत पीवो. दुकान की चाय मत पीवो. डोंट ड्रिंक टी फ्रॉम द शॉप और फ्रॉम आउटसाइड. ओके, दुकान की चाय मत पीवो. डोंट ड्रिंक शॉप्स टी. डोंट बाई टी फ्रॉम द शॉप एंड ड्रिंक. ओके, so drinking tea is not advisable, but if you want to drink, prepare in your home and drink. Don't buy it from the shop. समझे? So दुकान की चाय मत पीवो. Here चाय is in feminine gender. चाय is in feminine gender. So we are using की before that. दुकान की चाय. दुकान की चाय मत पीवो. दुकान की चाय मत पीवो. Don't drink tea from the shop. Okay, दुकान की चाय. दुकान की चाय. चाय is in feminine gender. Okay, children. So far we have seen so many examples, isn't it? Go through them, learn them, and use it every day. नरेन की कक्षा कक्षा में. नरेन की कक्षा में. कक्षा means classroom. कक्षा classroom. That is in feminine gender. Kaksha in what gender? Feminine gender. So I am writing की कक्षा. समझे बच्चे? नरेन की कक्षा में. In Naren's class. समझे? कक्षा non living things. That is the meaning. Classroom. What gender is it? It is in feminine gender. So we are writing Naren की कक्षा में. In my class. What will you say? मेरी कक्षा में. समझे? नरेन की कक्षा में. In Naren's class. नरेन की कक्षा में कितने छात्र हैं? कितने छात्र? How many students? How many students are in Naren's class? समझे? नरेन की कक्षा में कितने छात्र हैं? How many students are there in Naren's class? नरेन की कक्षा में. कक्षा is in feminine gender. याद रखो. नरेन की कक्षा में कितने छात्र हैं? नरेन की कक्षा में. कक्षा में in Naren's class. How many students are there in Naren's class? Okay. दूसरा वाक्य देखो. नवीन की ठोकरी. टोकरी में. नवीन की टोकरी में. In Naveen's basket. Tokri. Here tokri is a living thing or non-living thing? It is a non-living thing, but it is in feminine gender. So we are using ki before that. That is tokri follows ki, isn't it? So Naveen ki tokri mein. In Naveen's basket. समझे? टोकरी feminine gender. So we are using ki before that. Ki shows that
tokri is a feminine gender word. Why I am again and again insisting that means if you do any mistake in correction, it won't be nice. Okay, it will be a wrong usage. So you must use the language in a proper way. For that, you must know very well, you must be thorough where to use ka, ke and ki. नवीन की टोकरी में क्या है? What is in Naveen's basket? की टोकरी में, that is the important word here. की टोकरी में. What is in Naveen's basket? कुत्ता है, बिल्ली है. नवीन की टोकरी में कुत्ता और बिल्ली है. समझे? नवीन की टोकरी. समझे बच्चे? So what we have learned, याद रखो. Remember these words. Try to learn more and try to talk in Hindi. Proud to be an Indian. See the picture. दिनेश की पुस्तक यहाँ है. दिनेश की पुस्तक यहाँ है. दिनेश की पुस्तक यहाँ है. की पुस्तक. की पुस्तक. What do you learn by this? Pustak is in feminine gender. Kitab also feminine gender only. Pustak also in feminine gender. Dinesh की पुस्तक. दिनेश की पुस्तक यहाँ है. दिनेश book is here. दिनेशिनुடைய புத்தகம். समझे बच्चे? दिनेश की पुस्तक यहाँ है. दिनेश बुक इज हियर. सो की पुस्तक. पुस्तक इज इन feminine gender. Okay. In this picture, what you are seeing? A guy. Guy means cow. Guy is in masculine gender or feminine gender? It is a feminine gender word. How do you say? How do you say? Because गाय के पहले बिफोर गाय वी हैव की. कृष्ण की गाय. कृष्ण की गाय क्या करती है? चरती है. कृष्ण की गाय चरती है. सो बाय यूजिंग की वी आर सेइंग गाय इज अ फेमिनिन जेंडर वर्ड. ओके. कृष्ण की गाय चरती है. कृष्ण की गाय चरती है. चरना to graze. चरना to graze. The cow grazes. Okay. कृष्ण की गाय चरती है. कहाँ चरती है? खेत में. कहाँ चरती है? खेत में, मैदान में. ओके. क्या चरती है? घास चरती है. कृष्ण की गाय. की गाय. That is a feminine gender word. Guy is in feminine gender. Okay, children. See here. आज की चांदनी सुहावना. सुहावना है. आज की चांदनी सुहावना है. चांद. चांद means moon. चांदनी moonlight. चांदनी. What's the meaning for चांदनी? Moonlight. आज की चांदनी सुहावना है. Today's moonlight is pleasant. सुहावना सुंदर, ब्यूटीफुल. सुहावना pleasant. सुहावना pleasant. So आज की चांदनी सुहावना है. Today's moonlight is pleasant. So आज की चांदनी. आज की चांदनी मीन्स टुडेज मूनलाइट. आज की चांदनी. चांद मून. चांदनी मूनलाइट. आज की चांदनी कैसी है? सुहावना. कैसी है? सुहावना है. सो टुडेज मूनलाइट इज वेरी प्लेसेंट. समझे? मूनलाइट इज प्लेसेंट. आज की चांदनी. समझे बच्चे? So, Chandni is a feminine gender word. How do you say? Because aaj ki Chandni. Today's moonlight. Okay. So, we have learned
so many examples like that. इनको याद करना, everyday बोलना, then only you will remember them. Wherever you get the chance, you please try to use these words. समझे? Try to learn children, you learn more. याद रखो बच्चे, each and everything has a gender in Hindi, isn't it? ध्यान से सुनो. ऊटी की गाजर, ऊटी की गाजर मोटी है. ऊटी की गाजर मोटी है. ऊटी एक स्थान का नाम, प्लेस का नाम ऊटी है. ऊटी की गाजर, गाजर कैरेट. What's the meaning for gajar? Carrot. What gender is this? Gajar is in feminine gender. So we are using ki. Okay. ऊटी की गाजर कैसी है? मोटी है. What is that carrots are very thick. मोटा, मोटी means fat. मोटा आदमी, मोटी औरत. But here we cannot say fat carrot. Isn't it? So these carrots are thick. Okay, big also you can say. ऊटी की गाजर मोटी हैं. ऊटी की गाजर मोटी हैं. ऊटी's carrots are thick. समझे? यहाँ carrot is in feminine gender. Carrot गाजर, it is in feminine gender. So what we are writing? ऊटी की गाजर. ऊटी की गाजर ताजी हैं. ऑल्सो यू कैन से दे आर वेरी फ्रेश. ऊटी की गाजर ताजी हैं. ऊटी की गाजर मोटी हैं. समझे बच्चे? मूव टू द नेक्स्ट वन. देखो, दीवार की घड़ी नई है. दीवार की घड़ी कैसी है? नई है. नई मीन्स न्यू. दीवार की घड़ी, वॉल क्लॉक. दीवार की घड़ी, दीवार की घड़ी, वॉल क्लॉक. देखो, इन हिंदी वी हैव द सेम वर्ड फॉर वॉल क्लॉक एज वेल एज रिस्ट वॉच. हाथ की घड़ी, हाथ घड़ी ऑल्सो यू कैन से. हाथ की घड़ी, हम घड़ी हाथ में पहनते हैं, दैट इज रिस्ट वॉच. दैट ऑल्सो घड़ी है. दीवार में रखते हैं ना, वो भी घड़ी है. सो दीवार की घड़ी नई है. दीवार की घड़ी कैसी है? नई. द वॉल क्लॉक इज न्यू. द वॉल क्लॉक इज न्यू. दीवार की घड़ी, घड़ी इज इन फेमिनिन जेंडर, सो वी आर यूजिंग की. ओके चिल्ड्रन, नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस. कश्मीर की झील सुंदर है. कश्मीर की झील. झील माने लेक. व्हाट इज द मीनिंग फॉर झील? लेक. लेक्स इन कश्मीर इज ब्यूटीफुल. कश्मीर की झील सुंदर है. कश्मीर की झील कैसी है? सुंदर. झील दैट इज लेक. लेक इज ऑल्सो या feminine gender word. Okay, so we are using ki before झील. समझे? झील follows the correction है की. Can you got it children? So Kashmir की झील you have to write. Nadi also in feminine gender only. झील also या feminine gender word. So कश्मीर की झील सुंदर है. समझे? सो प्यारे बच्चे, तुमको क्या करना? इन वाक्यों को याद करना. यू हैव टू मेमोराइज दीज सेंटेंसेस. देन वेर एवर एप्लीकेबल यू हैव टू यूज़. फर्स्ट यू मस्ट नो द जेंडर. हाँ देखो, ये क्या है? पुराना घर. घर की दीवार पुरानी है. घर की दीवार कैसी है? घर की दीवार पुरानी है. The wall of this house is very old. पुराना, पुरानी, old one. घर masculine gender, so पुराना. That दीवार feminine gender, so पुरानी. घर की दीवार पुरानी है. समझे बच्चे? घर की दीवार
पुरानी, घर की दीवार. So दीवार is in feminine gender. घर की दीवार. ओके, घर की दीवार कैसी है? घर की दीवार पुरानी है. समझे? Now see this picture. Can you recognize who is in the picture? Can you say who are they? नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी. नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी हैं. नेहरू की बेटी कौन है? इंदिरा गांधी हैं. ओके, नाउ यू से हु आर ऑल इन द पिक्चर? चाचा नेहरू और उनकी बेटी इंदिरा गांधी. ओके, नेहरू's daughter is Indira Gandhi, that you know, isn't it? So नेहरू की बेटी, बेटी फेमिनिन जेंडर. नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी हैं. नेहरू's daughter is इंदिरा गांधी. What a beautiful picture it is, isn't it? कितना सुंदर है ये तस्वीर. तस्वीर मीन्स पिक्चर. कितना सुंदर है ये पिक्चर. नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी हैं. नेहरू की बेटी डॉटर, दैट इज इन फेमिनिन जेंडर. ओके, नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी. ओके, हु इज नेहरू? Who is Nehru? He was the first Prime Minister of Free India, isn't it? So नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी हैं. इंदिरा गांधी also the former Prime Minister of our India, isn't it? Okay बच्चे, बेटी is in feminine gender, so नेहरू की बेटी. समझे? देखो ये कौन है? श्री राम एंड सीता देवी, isn't it? श्री राम की पत्नी सीता. श्री राम की पत्नी सीता हैं. सीता कौन है? सीता श्री राम की पत्नी है. सीता कौन है? सीता श्री राम की पत्नी. ओके, श्री राम्स वाइफ इज सीता. श्री राम की पत्नी वाइफ फेमिनिन जेंडर. सो वी आर एडिंग की. श्री राम की पत्नी सीता हैं. सीता देवी कौन है? सीता देवी श्री राम की पत्नी हैं. सीता देवी कौन है? शी इज द वाइफ ऑफ श्री राम, isn't it? So patni is a feminine gender word, so we use ki before patni. राम की पत्नी. ओके, सीता की बेटी, रमेश की बिल्ली. समझे बच्चे? सो ध्यान से सुनो. ट्राई टू लर्न मोर एंड लिसन टू लर्न. ओके, इफ यू लिसन देन ओनली यू कैन लर्न मोर. समझे बच्चे? टेक केयर. Don't forget to prostrate at the feet of your parents and obey elders. Hari Om children, Namaste.